اچھا، یہ ہم نے پریویس کلاس میں EIGRP کو ڈسکس کر لیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ کل آپ کی لیب ہے، تو اس وجہ سے میں چاہ رہا ہوں کہ EIGRP کو آج میں دوبارہ سے کر لوں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو لیب کے لیے بھی پریپیئر کر دوں، ٹھیک۔ اٹ از ہم نے پڑھا تھا کہ دو طرح کی راؤٹنگ پروٹوکولز ہیں، ون آر کالڈ دا اسٹیٹک راؤٹنگ اینڈ دا ادر ون از دا ڈائنامک راؤٹنگ، ٹھیک۔ تو اسٹیٹک راؤٹنگ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جتنے بھی نیٹ ورک کے اوپر روٹس اویلیبل ہیں، تمام روٹس کو آپ نے مینولی کنفیگر کرنا ہوگا ہر ایک راؤٹر کے اوپر۔ اب فار ایگزامپل ایک سسٹم ہے ہمارے پاس، انفراسٹرکچر ہے، اس میں 5 نیٹ ورکس اویلیبل ہیں یا 5 راؤٹرس اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے، ایک نیٹ ورک ہے اور اس میں 5 راؤٹرس اویلیبل ہیں۔ اچھا، اب اگر فار ایگزامپل ایک اور راؤٹر کو آپ لگا لیتے ہو، یا اگر ایک راؤٹر جو ہے وہ ڈاؤن کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب ایسی صورت میں جتنے بھی راؤٹرز ہیں ان کے اوپر آپ کو یہ مینولی کرنا پڑتا ہے کہ آپ جو ہے انفارمیشنس کو شیئر کر دیں ان کے ساتھ، ٹھیک، اور نئی پاتھس کو دوبارہ سے ریکنفیگر کر دیں۔ اب اگر آپ کا سمپل نیٹ ورک ہو یا ہائیلی سیکیور نیٹ ورک ہو کہ جس میں نمبر آف راؤٹرز کم ہو، تو اس طرح کے نیٹ ورکس کے لیے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ جو اسٹیٹک راؤٹنگ ہے وہ ریکمینڈ ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ڈائنامک راؤٹنگ کو ہم کسی بھی صورت میں ریکمینڈ نہیں کرتے، لیکن اگر کر بھی لیا تو کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن سیکیور نیٹ ورکس کے اندر جو ہے پھر ہم اس کو وہ کرتے ہیں، ٹھیک۔ ڈائنامک راؤٹنگ میں یہ ہے کہ جتنے بھی نیٹ ورکس ہے، ہر ایک نیٹ ورک جو ہے اپنی جتنے بھی راؤٹرز ہے وہ اپنے ساتھ کنیکٹڈ جو نیٹ ورکس ہے ان کو ایڈورٹائز کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ اپنے نیٹ ورکس کو ایڈورٹائز کر لیتا ہے تو جو بھی کنیکٹڈ راؤٹرز ہوں گے ود ان دا نیٹ ورک، وہ اس ایڈورٹائزمنٹ کو گیٹ کر لیتے ہیں اور اپنے راؤٹنگ ٹیبلز کو اپڈیٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی راؤٹنگ انفارمیشنز جو لیٹسٹ ہوتی ہے وہ اس کو اویلیبل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس پرپس کے لیے ہم پھر کیا کریں، ٹھیک، کہ ڈفرنٹ ہمارے پاس ڈائنامک راؤٹنگ پروٹوکولز ہے، اس میں رپ ہے ورژن 1، ورژن 2، EIGRP، OSPF، BGP ایکسیٹرا۔ تو اب یہ مطلب جو دوسری راؤٹرز ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ راؤٹنگ پروٹوکولز ہیں، یہ اس پرپس کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، ٹھیک، لیکن BGP جو ہے وہ جو ہے بارڈر گیٹ وے پروٹوکول ہے، وہ آؤٹ سائڈ دا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو CCNA کے ڈومین سے بھی وہ باہر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس CCNP ہے تو اس میں نارملی کور کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسے نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کہ جو کہ کارپوریٹ نیٹ ورکس کے اوپر کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مثلاً PTCL ہے، اور PTCL میں وہ کیا کرتے ہیں، یا وہ 3 ہے یا وارد ہے، ٹھیک ہے، یا زونگ ہے، جیز کا مطلب نیٹ ورک ہے، یا فار ایگزامپل ٹیلینار کا ہے، مطلب اس طرح جو اسٹرکچر نیٹ ورکس ہے جو مین انفراسٹرکچر پرووائڈ کرتے ہیں پبلک کو، تو اس میں وہ پھر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو نیٹ ورک ود ان دا آرگنائزیشنز ہیں، ٹھیک ہے، اس میں EIGRP، RIP اور OSPF کو استعمال کرتے ہیں، جبکہ BGP جو ہے مطلب وہ پبلک نیٹ ورک جو بہت ہی بڑا نیٹ ورک انفراسٹرکچر اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
So in dynamic routing protocol, if the destination is unreachable, then another entry in the routing table to the same destination can be used. One of the routing protocols is EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Is a dynamic routing protocol which is used to find the best path between any two layers, uh, three devices to deliver the packet. EIGRP works on the network layer protocol of the OSI model and uses the protocol number 88. It uses the metric to find out the best path between uh, two layers, three devices, router and layer 3 switches operating EIGRP. So administrative distance for EIGRP is अच्छा ये समरी राउट्स के लिए जो है वो 5 है, इंटरनल राउट्स के लिए जो है वो 90 है और एक्सटर्नल राउट्स जो है उसके लिए 170। अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि जो आपकी प्रायोरिटी बनती है, ठीक है, तो वो इसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के ऊपर बनती है। मसलन अगर एक और प्रोटोकॉल है और उसमें इंटरनल रोड्स के लिए जो प्रायोरिटी है वो 70 है, ठीक है, तो EIGRP भी है और रिप भी है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में से या फॉर एग्जाम्पल OSPF भी अगर है, ठीक है, तो वो फिर ऐसी सूरत में वो क्या करता है कि वो इसको गेट करेगा कि जिसकी प्रायोरिटी लो हो, यानी अगर 70 है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देगा और इसको सेकंड प्रायोरिटी देगा, ठीक है। तो ये इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि बाज़ औक़ात जो कॉरपोरेट राउटर्स होते हैं उसमें मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स इनेबल होते हैं, ठीक है। तो मुमकिन है कि किसी भी टाइम जो है कोई और राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल्ड हो तो फिर उसको प्रायोरिटी मिलती है। It uses some messages to communicate with the neighbor devices that operates EIGRP. These are the hello messages, the null updates, full update, partial update, query messages, reply messages, acknowledgement messages, etc. अच्छा, अब hello and acknowledgement packets do not require any acknowledgement. Reply, query, update messages are reliable messages that is require acknowledgement. तो ये उसके लिए acknowledgement चाहिए, मतलब रिसीव करें तो इसको acknowledgement इसकी मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, हमने ये कहा कि जो EIGRP है वो मैट्रिक को यूज़ करता है, ठीक है। तो मैट्रिक को यूज़ करने जो है एक्चुअली ये एक फार्मूला है, ठीक है, कि जिसमें डिफरेंट पैरामीटर्स को हम पुट करते हैं और वो हमें रिज़ल्ट उस फार्मूले से हम उसको हमें रिसीव हो जाता है, ठीक है। अच्छा, EIGRP composite metric calculation can be used up to 5 variables, but only 2 are used by default, K1 and K3. The composite metric values are K1, it means the bandwidth, K2 load, K3 delay, reliability, K4 and MTU minimum transmission unit, K5. बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपसे ये कहा कि K1 और K3 को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए कंपोजिट मैट्रिक कैलकुलेट वो फार्मूला तो मैं अभी आपको शो कर दूंगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप इसको अपने जहन में रखें कि K1 जो है वो बैंडविड्थ है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि कंपोजिट मैट्रिक का जो रिज़ल्ट हमें आना है वो ऐसे आना है कि आप अगर देखें कि K1 बैंडविड्थ, ठीक है, ठीक है,
अगर ज़्यादा होगा तो वो यूज़ करेगा, ठीक है। अगर बैंडविड्थ कम होगा तो कोई मतलब उस पाथ को इस्तेमाल, मतलब अगर दो नेटवर्क से आपस में कनेक्ट है टू डिफरेंट पाथ से, ठीक है, तो वो वाली नेटवर्क या वो वाली पाथ ये चूज़ करेगा कि जिसके ऊपर बैंडविड्थ ज़्यादा हो। मसलन एक लिंक है वो 5 MB बैंडविड्थ का है और दूसरा 10 MB बैंडविड्थ का है, ठीक है, तो ये प्रेफर करेगा कि 10 MB बैंडविड्थ को यूज़ करें। मसलन अगर मैं ये कह दूँ कि हम पेशावर से इस्लामाबाद जाते हैं, ठीक है, तो मोटर वे भी है और GTA रोड भी है, तो मोटर वे के ऊपर स्पीड ज़्यादा है, GTA रोड के ऊपर कम है, तो अगर हम EIGRP को कंसिडर करेंगे तो वो मोटर वे को प्रेफर करेगा, ठीक है। सेकंड जो इसका डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है वो डिले है, ठीक है, तो डिले में क्या होगा कि वो वाला पाथ फॉलो करेगा कि जिसके ऊपर डिले कम हो, और जिसके ऊपर डिले ज़्यादा होगा तो अगर उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा हो तो भी उसको चूज़ नहीं करेगा, ठीक है। यानी दोनों का रेशो होगा, तो जब रेशो तो रेशो के ऊपर कैलकुलेट, तो रेशो जिसका ज़्यादा होगा उसको वो चूज़ करेगा, ठीक है। Okay, the lower the bandwidth, load delay, reliability, MTU along the path between the source and destination is considered to be a composite matter in order to calculate the cost, ठीक है। तो इन सब को मिलाकर जो है हम टाइम कॉस्ट को कैलकुलेट। अच्छा, अब इसके अलावा जो है क्राइटेरिया फॉर टू फॉर्म द EIGRP neighborship, these criteria should be filled up. नंबर वन, के वैल्यू शुड मैच, कि जो के वैल्यूज़ है वो आपस में मैच करें, ठीक है, यानी एक तरफ से 5 MB तो दूसरी तरफ से भी 5 MB हो, ठीक है। अदरवाइज़ जो है राउटर ख़ुद ब खुद इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऑटोनमस सिस्टम नंबर शुड मैच, यानी विद इन द ऑटोनमस सिस्टम नंबर होगा, ठीक है। ए इज़ द ग्रुप ऑफ नेटवर्क रनिंग अंडर अ सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ठीक है। अच्छा, ऑथेंटिकेशन शुड मैच इफ़ अप्लाइड, ERP support MD5 authentication only, subnet mask should be same, तो ये अगर सेम होगा तो वो एक EIGRP ऑटोनमस सिस्टम नंबर के अंदर वो कैलकुलेट होंगी, ठीक है। अगर इनमें से एक भी वैल्यू चेंज होगी तो फिर वो उसको कंसिडर नहीं करेगा। टाइमर्स, हेलो टाइमर है, इट इज़ द इंटरवल विच in which EIGRP sends hello message on the interface, it is 5 seconds by default. Dead timer, ठीक है, द इंटरवल, अच्छा अब ये 15 मिनट तक होता है, मतलब हेलो इसने कहा तो ये 5 मिनट तक उसके लिए वेट करता है, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 15 मिनट तक उसको रिप्लाई ना मिली तो ये उसको डेड कंसिडर कर लेता है, ठीक है। आप ये जो है राउटिंग मैट्रिक का फार्मूला है, मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम कर दूं, ठीक है, ये वाला राउटिंग मैट्रिक का फार्मूला है, ठीक। तो इसमें K1 K2 K3 K4 और K5 को पुट करके रिज़ल्ट आपको दे देता है, ठीक है। मैंने कहा कि नॉर्मली K5 और K4 को जो है नॉर्मली नहीं लिया जाता, ठीक है। नॉर्मली किस को लिया जाता है, K1 को, K2 को और K3 को। तो देखिए K1 K2 और K3 क्या, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। K1 क्या है, हाँ, बैंडविड्थ है, ठीक है। K2 क्या है, लोड है, और K3 क्या है, डिले है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक है। K1 ठीक है, K2 लोड है और K3 क्या है, डिले है। तो ये इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट की जाती है। नॉर्मली बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो फिर उसमें उसको लिया जाता है, अदरवाइज़ K4 और K5 को हम कंसिडर नहीं करते, ठीक। अच्छा, अब अगर हम
EIGRP کے بارے میں چونکہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر دیا تھا، ٹھیک ہے. اچھا، اب وی ول ٹیک اے لک آف دا انہانس وچ از اے سسکو. اب یہ جو ہے جو راؤٹنگ پروٹوکول تھا، یہ سسکو پرائیورٹی پروٹوکول تھا، ٹھیک ہے. یعنی سسکو جو ہے یہ سمجھ رہی تھی کہ ہماری ایک طرح سے مناپلی بن جائے، ٹھیک ہے، اور ہمارا جو راؤٹنگ سسٹم ہے اسی کو ہی یوز کیا جائے، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز پاسبل پھر نہیں تھی، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو ہے دوسری جو مطلب کمپنیز تھی وہ پھر اس کو استعمال نہیں کر پا رہی تھی. تو مسئلہ تو آئسولیشن کی طرف جا رہا تھا، ٹھیک ہے. تو آئسولیشن کی وجہ سے جو ہے اصل میں یہ نیٹ تھوڑا سا ایشو دے رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے مجھے تھوڑی سی لیکچر میں وہ تعطل سا. اچھا، تو مطلب یہ ہے کہ دوسری کمپنیز جو ہے ان کے اپنے پروٹوکول سے تو وہ EIGRP کو یوز نہیں کر رہے تھے. تو اس وجہ سے مطلب ان کو جو ایشو آ رہا تھا سسکو کے ڈیوائسز کے ساتھ کنیکٹیویٹی ان کی نہیں ہو پا رہی تھی، ٹھیک ہے. تو مجبوراً پھر سسکو کو اس کو بھی اوپن کرنا پڑا، ٹھیک ہے. تو اب جو ہے یہ سسکو جو ہے جو EIGRP نو اٹ از این اوپن پروٹوکول، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ چونکہ رپ ہم نے پڑھائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے میں اس کو ڈسکس بھی یہاں پر نہیں کروں گا. اچھا، اٹ واز اونلی اویلیبل آن سسکو ہارڈ ویئر، میں نے آپ سے ہی کہا دیا. بٹ سنس a few years it is now an open standard. اب یہ کیا ہے، انہوں نے اوپن اسٹینڈرڈ کو میں کنورٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اوروں کے اوپر بھی اویلیبل ہے. اٹ از کال اے ہائبریڈ اور ایڈوانس. ہلو ہلو جی، آواز میری آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی، میری آواز آ رہی ہے؟ کس کو کہہ رہا ہوں؟ اچھا، چلو. ہاں، EIGRP is a hybrid or advanced distance vector protocol, and most of the rules that apply to RIP also apply here. اچھا، split horizon, route poisoning and poise reverse. اچھا، اب جو EIGRP ہے وہ چار قسم کے ٹیبلز کو، تین قسم کے ٹیبلز کو مینیج کرتا ہے. EIGRP نائبر ٹیبل، ٹھیک ہے. سیکنڈ دا EIGRP ٹاپالوجی ٹیبل اینڈ دا گلوبل راؤٹنگ ٹیبل. یہ تین طرح کے ٹیبلز کو یہ مینیج کرتا ہے، ٹھیک ہے. لسٹ آف آل ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نائبرس، دا نیکسٹ ہاپ راؤٹر اینڈ دا انٹرفیس. تو نائبر ٹیبل میں کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی راؤٹرز ہیں ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ان کی لسٹ، نیکسٹ ہاپ راؤٹر اس کا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا انٹرفیس انفارمیشن. یہ تین چیزیں جو ہیں نائبر ٹیبل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو نائبر ٹیبل سے یہ کیا کرتا ہے، وہ آپس میں نائبرنگ انفارمیشنز کو شیئر کر دیتی ہے. مثلا اگر ایک راؤٹر جو ہے کنیکٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ نائبر ہوڈ کو پروڈیوس کرتا ہے کہ مطلب میرے ساتھ جو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ راؤٹرز ہیں وہ کون سے ہیں. نیکسٹ از دا EIGRP ٹاپالوجی ٹیبل.
अच्छा, इसमें जो है तमाम जितने भी लर्नेड राउट्स है तमाम को डाल देता है, ठीक है। अब टोपोलॉजी टेबल में क्या होगा कि अगर एक नेटवर्क राउटर है, नेटवर्क है और उसके ऊपर 10 राउटर्स अवेलेबल हैं, तो टोपोलॉजी टेबल में ये तमाम जो है राउटर्स की इंफॉर्मेशंस होंगी, ठीक है। जितने भी इसने लर्न की है, डेस्टिनेशन और मैट्रिक यानी उसके जो रिज़ल्ट्स है वो इसमें मौजूद होंगी, ठीक है। यानी तमाम के तमाम 10 जो राउटर्स हैं। अब ग्लोबल राउटिंग टेबल में क्या होता है कि उसमें से बेस्ट राउट्स को सर्च करके इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल राउटिंग टेबल में क्या होगा कि जितने भी मतलब बेस्ट राउट्स हैं, ठीक है, आउट ऑफ द एंटायर, ठीक है, उसको लेकर इसमें फिट कर देते हैं, ठीक है। तो बेस्ट राउट्स फ्रॉम द EIRP टोपोलॉजी टेबल विल बी कॉपीड टू द राउटिंग टेबल, ठीक। तो वो इसमें यानी अगर फॉर एग्जांपल 10 नेटवर्क्स एक नेटवर्क उसमें 10 राउटर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, तो वो तमाम इंफॉर्मेशन किस में मौजूद होंगी, टोपोलॉजी टेबल में मौजूद होंगी। जबकि ग्लोबल राउटिंग टेबल में क्या होंगी कि इनमें से जो बेस्ट होगा वो वाली इसमें मौजूद होंगी, ठीक है। मसलन अगर ये मैं कह दूं कि एक जगह को जाने के लिए 5 वेज़ हैं, ठीक है, तो तमाम इंफॉर्मेशन टोपोलॉजी टेबल में मौजूद होंगी। लेकिन इसमें से जो बेस्ट पाथ होगा तो वो किस में अवेलेबल होगा, वो ग्लोबल राउटिंग टेबल में मौजूद होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ये कह दूं कि किसी भी वजह से जो मोस्ट प्रायोरिटी जो लिंक है वो डाउन कर जाए, यानी वो लिंक जो है ख़त्म हो जाए, ठीक है ना, यानी किसी भी रीज़न की वजह से किसी ने केबल काट दी या इलेक्ट्रिसिटी उस पाथ की मतलब वो हो गई, ठीक है, बिजली चली गई, राउटर माल फंक्शन कर गया, ठीक है। तो अब ऐसी सूरत में जो है अल्टरनेट पाथ को टोपोलॉजी टेबल से गेट करके ग्लोबल राउटिंग टेबल में मूव कर देते हैं। और अब जो नई मतलब कम्युनिकेशन होगी वो किस बेस के ऊपर होगी, इस नई ग्लोबल राउटिंग टेबल के मुताबिक अब होगी, ठीक है। EIGRP routers will start sending hello packets to the other routers just like OSPF does. If you send a hello packet and you receive them, you will become a neighbor, ठीक। तो मतलब मैंने ये कहा आपसे कि डायरेक्टली जो कनेक्टेड है आपस में ये तो नाइबरहुड को वो प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। EIGRP neighbors will exchange routing information which will be saved in the topology table. तो किस में सेव होंगी, टोपोलॉजी टेबल होगी। द बेस्ट पाथ फ्रॉम द टोपोलॉजी टेबल विल बी कॉपी टू द ग्लोबल राउटिंग टेबल। में इधर मतलब ग्लोबल का वर्ड मैंने नहीं लिखा, ठीक है, लेकिन ये क्या है, द ग्लोबल राउटिंग टेबल, यानी इसमें ये कॉपी कर देते हैं। तो टोपोलॉजी टेबल में तमाम इंफॉर्मेशंस होंगी, जबकि ग्लोबल राउटिंग टेबल में जो बेस्ट पाथ होगा उसको यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। So selecting the best path with EIGRP works a bit different than the other routing protocol. So let's see it in action. अच्छा, आप ये देखें हमारे पास ये 3 राउटर्स हैं, ठीक है, और डेस्टिनेशन जो है राउटर 3 के बियॉन्ड के ऊपर है, ठीक है। तो we have the 3 routers named R1, R2 and R3, and we are going to calculate best path to the destination which is behind R3. अब यहाँ पर जो है डेस्टिनेशन अवेलेबल है, ठीक है, जो R3 के साथ कनेक्टेड है। अब इसके लिए हम बेस्ट पाथ को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। EIGRP uses a rich set of matrices namely bandwidth, delay, load and reliability. लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि ये 3 जो है कॉमनली यूज़ होती हैं, बैंडविड्थ, डिले एंड लोड, ठीक है, जबकि रिलायबिलिटी और MTU इतना इस्तेमाल नहीं हो। तो बहरहाल मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने वो करूँगा, अगर ये भी है विच अच्छा these values
will be put into the formula and each link will be assigned a metric. ठीक है, the lower these matrices the better. हम इसको metric भी बोलते हैं और cost, COST, cost भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो हम अगर ये कहते हैं कि टोपोलॉजी टेबल में तमाम पाथ्स होंगी, ठीक है, तो उसके सामने उसकी कास्ट भी अवेलेबल होती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर आप देखें तो लिंक्स के ऊपर जो रेड कलर में नंबरिंग हुई है, ठीक है ना, ये तो दीज आर द मैट्रिक्स, हम इसको कॉस्ट कहें या मैट्रिक बोल लें, ठीक है, जो भी आप इसको कहें। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या करता है कि R3 है तो वो अपनी कास्ट को या मैट्रिक को एडवर्टाइज कर लेता है। तो जब ये अपने मैट्रिक को एडवर्टाइज कर लेता है, ठीक है, तो R2 है या कोई भी एक है तो उसको ये अवेलेबल हो जाता है। तो इसको R3 कह देता है कि आप से जो डेस्टिनेशन है वो 5 मैट्रिक के ऊपर अवेलेबल है। ठीक, सर आपका आवाज़ नहीं आ रहा। हेलो सर। जी जी, अच्छा, माइक का, अच्छा, अब आ रही है आवाज़? हाँ सर आ रही है अब। वो मुझसे कहीं माइक म्यूट हो गया, सर बता दिया करें। बहरहाल मैं रिकॉर्डिंग तो कर रहा हूँ। सर सर जी जी, अच्छा, ठीक। ज़रा दोबारा बोलें, आवाज़ आपकी कट रही है। सर अभी आ रही है आवाज़। अच्छा, चले, सही है, ठीक है। अब खैर मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करें कि मतलब अगर इशू है तो उसी टाइम मुझे बता सर दिया करें, ठीक है ना। आवाज़ आ रही है, बस इसका क्या रहे। चले, ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आप देखें तो एडवर्टाइज डिस्टेंस जो है इसको मिल जाता है R2 को, ठीक है। तो R2 जो है अपने साथ जो है, अब ये आप देखें ना, ये तो इसका है ना, 3 का है, ठीक है। तो इसका जो मैट्रिक है ये 10। तो ये अब देखें, मैं अगर आपसे ये कह दूँ कि डेस्टिनेशन R2 से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक, तो आपने ये नहीं कहना कि 5 के ऊपर है, बल्कि 2 और 3 के बीच में जो कॉस्ट है या मैट्रिक है उसको ऐड करके आपने फुल डिस्टेंस को कैलकुलेट करना होगा। मसलन अगर मैं ये कह दूँ कि व्हाट इज़ द मैट्रिक कॉस्ट फ्रॉम R2 टू द डेस्टिनेशन, तो आपने 5 नहीं कहना, बल्कि 5 प्लस 10, यानी ये 10 है और ये 5 है, इन दोनों को मिलाकर जो है आपने कह देना है, ठीक है, कि ये इसका डिस्टेंस होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरीके से अगर हम R1 को ले लें और इससे हम अगर ये कहें कि डेस्टिनेशन जो है कितने मैट्रिक के ऊपर अवेलेबल है, या कितने डिस्टेंस के ऊपर अवेलेबल है, तो अब इसी सूरत में आप देखें ना, 5 प्लस 10 प्लस 5, तो R1 से जो है ये 20 डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। अब ये 5 और 10 क्या है, ये वो वैल्यूज़ है जो हमें यहाँ पर इस फार्मूले से हमें मिली है, ठीक है, ये जो फार्मूला है, ठीक है, बैंडविड्थ है, ठीक है, लोड है और डिले है। K4 और K5 मैंने आपसे कहा कि ये नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते, ठीक। अच्छा, खैर ये अभी आगे दोबारा से ये अभी आपके सामने आएंगी, ठीक है। R3 will advertise to R2 its matrix towards the destination. Basically R3 says to R2, it cost me 5 to get there, ठीक। दिस इज़ कॉल्ड द एडवर्टाइज डिस्टेंस, यानी R3 R2 को क्या कह देता है कि जो आपका डेस्टिनेशन है वो मुझसे 5 कॉस्ट के ऊपर है, या उसकी जो मैट्रिक वैल्यू है वो क्या है, 5 है, ठीक है। R3 हैज़ a topology table and in this topology table it will save this metric, the advertised distance to reach the destination 5, ठीक।
अच्छा, अब ये तो हो गई एडवर्टाइज डिस्टेंस। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिजिबल डिस्टेंस है। तो फिजिबल डिस्टेंस ये है कि एडवर्टाइज डिस्टेंस प्लस द एडवर्टाइज डिस्टेंस बिटवीन R2 एंड R3, तो ये 15 बनेगा। ये देखें ना, ये एडवर्टाइज डिस्टेंस हो गया R3 के लिए, और ये R2 और R3 के बीच में जो डिस्टेंस है। सो 10 प्लस 15, 5 इज इक्वल टू 15। तो 15 इज़ अ फिजिबल डिस्टेंस। तो फिजिबल डिस्टेंस का मतलब ये है कि अब अगर मल्टीपल पाथ्स हमारे पास है डेस्टिनेशन की तरफ, तो एक ये है, दैट इज़ द फिजिबल डिस्टेंस। अगर और होंगी तो वो भी साथ में डाल देंगे। तो जब बाकियों को भी डाल देंगे तो अब जो है इसमें से फिर चूज़ किया जाता है कि जो भी डिस्टेंस सबसे कम होगा, यानी इसी केस में तभी हमारे पास एक ही पाथ है। लेकिन अगर मल्टीपल पाथ्स होंगे डेस्टिनेशन की तरफ, तो वो भी हमारे पास फिजिबल डिस्टेंसेस में आएंगी फ्रॉम R2। लेकिन जब ये कैलकुलेट करेगा तो उसमें से बेस्ट पाथ को चूज़ करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द लीस्ट और द लोवेस्ट फिजिबल डिस्टेंस। अच्छा, वी आर नॉट yet done, since there is something else that R2 will save in the topology table. We know the advertised distance is 5 since this is what R3 told us, ठीक है ना। लेकिन अब जो है उधर से कितना है, R2 से, उसको भी आपने देखना है ना। We also know that the metric of the link between R2 and R3 is since directly connected. So R2 knows that the metric for the total path of the destination is the total path called the feasible distance. ये मैंने अभी डिस्कस कर दिया आपके सामने, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है कि ये फिजिबल डिस्टेंस होगा, ये तो एडवर्टाइज डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। अब ये क्या है कि R2 से अब डेस्टिनेशन कितने फासले पर है, तो ये आप देख लें, R2 टू R3 प्लस R3 टू द डेस्टिनेशन। तो ये आपका फिजिबल डिस्टेंस है। ये मैंने आपसे कह दिया कि अगर अदर पाथ्स होंगी तो वो भी आपके पास टोपोलॉजी टेबल में पड़ी होंगी, ठीक है। तो टोपोलॉजी टेबल में तमाम पड़ी होंगी। अब EIGRP क्या करेगा, उसमें से बेस्ट पाथ को गेट कर लेगा। तो बेस्ट पाथ कौन सा होगा कि जिसमें फिजिबल डिस्टेंस सबसे कम होगा। अच्छा, द एडवर्टाइज डिस्टेंस यू आर द नाइबर टेल्स सो फार एंड द फिजिबल डिस्टेंस, तो ये दो चीज़ें अब हमें अवेलेबल हो गई, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम R1 के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आ जाए, R2 के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने कर दिया, ठीक। अब R1 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको गेट कर लेते हैं। तो अब देखिए R1 क्या कहता है, ये बार बार नेट जो है डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, ये नेट मुझे लगता है थोड़ा इशू आ रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। बहरहाल रिकॉर्डिंग तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप ठीक है कि आप ऑनलाइन हैं, कोशिश करें कि टाइम पर आप ऑनलाइन हो जाया करें, क्योंकि तकरीबन कोई 10-12 मिनट मुझे इंतज़ार करना पड़ा है, ठीक है ना, आप लोगों के लिए। बहरहाल ये आप देख लें कि R2 जो है अब डेस्टिनेशन के लिए क्या करेगा। अब देखिए R3 ने एडवर्टाइज़ किया 5 को, दैट इज़ द एडवर्टाइज डिस्टेंस। लेकिन अब R2 डेस्टिनेशन को एडवर्टाइज डिस्टेंस जब एडवर्टाइज करेगा तो वो 15 करेगा। क्यों कि R2 से तो डेस्टिनेशन 10 + 5 यानी 15 के डिस्टेंस के ऊपर है। तो अब R1 को ये एज ए एडवर्टाइज डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक। अब ये तो एडवर्टाइज डिस्टेंस हो गया। अब इसके लिए जो फिजिबल डिस्टेंस है, हाँ, अब इसके लिए जो फिजिबल डिस्टेंस है वो क्या होगा। तो फिजिबल डिस्टेंस जो है अब इसके लिए ये होगा कि
15 + 5 यानी 20 होगा। ठीक, अब देखिए R2 ने तो अपने हिसाब से शॉर्टेस्ट को कैलकुलेट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिबल डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन अब अगर फॉर एग्जांपल हम R1 की बात करें, ठीक है ना, ठीक है, अगर हम R1 के हिसाब से अब बात करें, ठीक है, तो ये भी तलाश करता है या सर्च आउट करता है कि अदर लिंक्स या पास तो अवेलेबल नहीं है मेरे पास कि जिसके ऊपर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, तो उससे जब ये सॉरी उससे जब ये इसको गेट करेगा, ठीक है, तो वो अपने टोपोलॉजी टेबल से उसको गेट करके ग्लोबल राउटिंग टेबल में ये इंफॉर्मेशंस डाल देता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो है मैं क्लास मतलब आपकी जो कल की लैब होगी, ठीक है, उसके लिए मैं रिकॉर्डिंग आपके साथ फिर शेयर करूँगा। ठीक है, तो इसमें मेरी थोड़ी सी कोशिश होगी कि जो आपकी कल की लैब होगी तो वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स होगी। ठीक, बहरहाल जो कमांड्स वगैरह है वो थोड़ी सी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। ठीक है, कि कमांड्स क्या क्या है। ठीक है, तो हम ये कमांड्स है EIGRP 1। ठीक है, 1 क्या है, ऑटोनमस सिस्टम नंबर है। ठीक है, फिर नो ऑटो समरी। ठीक है, ऑटो समराइजेशन को ना करें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेटवर्क जो होगा उसको एडवर्टाइज करेगा। ठीक है, इसी तरीके से अब देखें इसने अपना नेटवर्क एडवर्टाइज करना, इसी तरह जो है R3 और R2 भी करेगा। अब देखिए अगर मैं इस नेटवर्क के ऊपर करूं, ठीक है, तो यही कमांड्स जो हैं R3 के ऊपर भी रिपीट होंगी, R2 के ऊपर भी रिपीट होंगी और R1 के ऊपर भी रिपीट होंगी। ठीक है, अब जब ये आप देखें इसमें तो होगा क्या कि R3 के साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स है उसको ये एडवर्टाइज करेगा। ठीक है, क्या करेगा ये, इसके साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स है वो एडवर्टाइज करेगा। ठीक है, इसी तरह R2 जो है वो अपने अगर देखें यही चीज़ यहाँ पर अगर हम आएँ और देखें तो ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा कम्प्लेक्स्ड है। ठीक है, इसमें देखिए कोई डेस्टिनेशन या फॉर एग्ज़ाम्पल सोर्स नहीं है। ठीक है, से मुख्तलिफ जो है इसके साथ नेटवर्क्स है और वो आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक, तो अब R4 है, तो R4 जो है अपने साथ जितने भी नेटवर्क्स हैं डायरेक्टली कनेक्टेड तो उसको एडवर्टाइज कर लेगा। ठीक है, अब जब ये अपने साथ जितने भी कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं उसको एडवर्टाइज करेगा, ठीक है, तो इसी तरीके से जो है R3 भी जो है अपने साथ जितने भी नेटवर्क्स हैं वो इसको एडवर्टाइज कर लेगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल R3 किन किन को एडवर्टाइज करेगा, 1 2 और 3 को। R2 किसको करेगा, ये और ये। R3 किसको करेगा, इस नेटवर्क को और इस नेटवर्क को। R1 जो है इसको और इसको एडवर्टाइज करेगा। अब ये जो है EIGRP इस वजह से आसान है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कि अच्छा, अब देखें यहाँ पर R1 है। ठीक है, तो ये आप देखें इसके साथ ये और ये, ठीक है, ये एडवर्टाइज करेगा। तो बस इतना इसका काम है। ठीक है, कि यहाँ से मतलब ये अपने आप को एडवर्टाइज कर लेगा तो दूसरे जो राउटर्स है इस एडवर्टाइजमेंट को गेट कर लेंगे। ठीक है, तो जब ये एडवर्टाइजमेंट ये गेट कर लेंगे, ठीक है, तो
ये गेट कर लेंगे तो अपने टोपोलॉजी टेबल को अपडेट करेंगे फर्स्ट, ठीक है। टोपोलॉजी टेबल को जब भी अपडेट करेंगे तो इससे फिर जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होंगी वो कॉपी करेगा ये किस में, हाँ, अपने ग्लोबल राउटिंग टेबल के अंदर, ठीक। डोंट वरी अबाउट दिस, ये कमांड्स जो हैं सारी मैं करूँगा आपकी लैब के लिए रिकॉर्डिंग, आप और ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो है देखिए कमांड्स की मैं आपको थोड़ी सी वो आपको बता दूँ, यही कमांड्स होंगी, यही मतलब हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर ख़ुद बनाएंगे और उसके साथ वो सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, कोई क्वेश्चन वगैरह है? अच्छा, अगर आप देखें ना तो EIGRP के ऊपर ये हमारा सेकंड वीक है, मैं आपको बता दूं। DCP से पहले भी हमने इसको किया था, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा सेकंड वीक है। तो मकसद आप इसको समझे कि एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से मैं इसको ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल की लैब के लिए मैं आपको फिर दोबारा ज़हमत दूंगा, ठीक है। अब के लिए इतना काफ़ी, वो रिकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लिंक भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कोई बंदा क्लास अगर ले सकता है सेक्शन ए से तो ठीक है, अदरवाइज़ रिकॉर्डिंग मैं आपको इसकी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू। आई एम डॉक्टर सैयद इरफानुल्लाह फ्रॉम अब्बासियन यूनिवर्सिटी, पेशावर।